Hello everyone, dear students of class 10th. We will discuss today exercise 6.3 part 2. Okay, because we have already discussed 10 questions of this exercise in previous one video. So today we will discuss remaining 6 questions of this exercise. So let us start with question number 11. So what is question number 11? Let us see question number 11. In 11th questions we have given here in figure 6.40, it means this figure, E is a point on side CB produced, okay, of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ECF के सिमिलर है. ओके, तो आइए इसको प्रूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर बन चुका है. ओके, अब हमें प्रूव करना है इसमें triangle ABD similar to triangle ECF. So we will see in these two triangle, in triangle ABD and triangle ACF, angle ADB is equal to angle EFC equal to angle EFC because both are 90 degree. Okay, and next angle B is equal to angle C because angle B and angle C are equal. Why? Because angles opposite to equal sides are equal, because angles opposite to equal sides are equal. Okay, so in these two triangles two corresponding angles are equal, so it implies what? Triangle ABD is similar to triangle ECF by angle similarity rule. Hence proved. Students, ये था हमारा 11th question. 12th question you have to do by yourself, and let us see 13th question. In 13th question we have given D is a point on side BC. We have given here D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. Students, इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं. स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 13 क्वेश्चन का फिगर बन चुका है, और 13 क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है कि एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है वो एंगल BAC के इक्वल है. ओके, सो लेट अस टेक ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ACB. इन ट्राइंगल ACB मीन्स ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ADC or DCA, triangle DCA. In these two triangle, angle BAC is equal to angle ADC, this one is given. ये हमारे पास given है.
ओके, क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो एंगल सी of triangle ACB and angle C of triangle ADC both are common. Therefore we can say triangle ACB is similar to triangle DCA by angle. Okay, and it implies what? It implies ACB, ट्राइंगल ACB की हम साइड CB लेंगे, CB अपॉन DCA की हम साइड CA लेंगे, DCA की हम साइड CA लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा CB अपॉन CA, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल CB of triangle ACB and CA of triangle ADC is equal to CA of triangle ACB upon CD of triangle ADC. Okay, we can write here corresponding sides of similar triangles, right? So students, from here we can write CA into CA is equal to CB into CD is equal to CA into CA, और we can write it as CA square into है ये बीच में is equal to CB into CD, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में हमें दिया है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि साइड AB AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, side PR and median PM of another triangle PQR. We have to show triangle ABC similar to triangle PQR. ओके, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फिगर बन चुका है। ओके, तो अब हमें प्रूव करना है। हमें सबसे पहले लिखेंगे हम, हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में आ जाएगा कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR in which AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। हमारे पास ये गिवन है। ओके, टू प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा, कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें ये प्रूव करना है, और हमें इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। तो हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है हमें वो लिखना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर DE पैरेलल टू EC, हम यहाँ से क्या करेंगे, D से E, इस ढंग से DE हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AC। और सिमिलरली यहाँ पर हम MS ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू PR। वी विल ड्रॉ DE पैरेलल टू AC and
एम एस पैरेलल टू पी आर, हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ प्रूफ, तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ। स्टूडेंट्स अपने प्रूफ ध्यान से देखना है कि हमने प्रूफ कैसे किया इस क्वेश्चन को। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट है बी सी का, मीडियन है। ओके, क्योंकि ए डी यहाँ पर मीडियन है। एंड डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन से आया है, ये कंस्ट्रक्शन से आया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया। Therefore we can say A is the midpoint of AB, इसलिए हम कह सकते हैं कि A is the midpoint of AB। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC, विच इम्प्लाइज 2 टाइम DE इक्वल टू AC। ओके, एंड सिमिलरली ऐसा ही हम इस वाले ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो हम इस वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं SM इक्वल टू हाफ ऑफ PR, विच इम्प्लाइज 2 टाइम SM इक्वल टू PR। कर सकते हैं ना ऐसा? ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो गिवन है हमारे पास। और गिवन क्या था? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो जो गिवन है उसको लिखेंगे हम। हमने लिखा यहाँ पर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। बट हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, जो AB है हमारा, इसको कर सकते हैं हम 2 टाइम AE अपॉन 2 टाइम PS। कर सकते हैं या नहीं? जो AB है हमारा, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम AE। ओके, और जो PQ है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम PS, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया कि S और E क्या है? मिड पॉइंट है। सो वी कैन राइट इट इम्प्लाइज 2 टाइम AE अपॉन 2 टाइम PS इज इक्वल टू AC और PR तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 टाइम DE अपॉन 2 टाइम SM, 2 टाइम DE अपॉन 2 टाइम SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM विल बी एज इट इज़। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स? बताते हैं आपको ऐसा हमने क्यों किया। बिकॉज ऐसा करने से क्या है, इस 2 से ये कैंसिल हो, इस 2 से ये कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है AE अपॉन PS। इट इम्प्लाइज व्हाट? इट इम्प्लाइज AE अपॉन PS इज इक्वल टू DE अपॉन SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल PMS। जो ADE है ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल था, अब ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल PMS। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हम इसको अगर एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 2 मान ले, इसको एंगल 3 मान ले और इसको एंगल 4 मान लेते हैं,
तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया यहाँ से। सो हमें ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। तो इट इम्प्लाइज व्हाट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली अगर हम उस साइड ऐसा सॉल्व करेंगे, इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल यही लेकर, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ओके, और ऐसा हमने कैसे किया, एस सिमिलरिटी रूल से। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हम दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, हम सिंपली ऐड कर देते हैं इनको। तो हमारे पास रिजल्ट निकल के क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, कंप्लीट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल्स में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज गिवन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। ओके, दिस वन इज ऑलरेडी गिवन। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमने क्या किया है, अभी प्रूव किया है। हम लिखेंगे proved above, right? So therefore we can say triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इसको ध्यान से देखना है कि हमने किया कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground। तो बहुत ही आसान बन जाता है ये क्वेश्चन। At the same time a tower casts a shadow 28 meter long, find the height of the tower। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। राइट, let us do 16th question of this exercise, which is last one question। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है ट्राइंगल ABC पैरेलल है ट्राइंगल PQR, हमें यहाँ पर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और मीडियन के इक्वल जो रेशो आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और मीडियन का, उसे इक्वल प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले बना लेते हैं इस क्वेश्चन की फिगर और फिर इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप गिवन आपके सामने है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो गिवन हमारे पास आता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, और टू प्रूव इसमें हमारे पास बन जाता है, टू प्रूव इसमें हमारे पास है, टू प्रूव है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। राइट, तो ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इट इम्प्लाइज व्हाट, कि एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। राइट, and AB upon PQ and AB upon PQ will be equal to BC upon QR, BC upon QR। बट क्योंकि ये मीडियन है AD और
पी एम हमारे मीडियन है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ओके, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी में चलते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ऑलरेडी गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो जाता है ट्राइंगल पी क्यू एम की। ओके, एंड ये हो जाता है हमारा साइड एंगल साइड रूल से। इट इम्प्लाइज व्हाट, कि अगर ये सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी मीडियन अपॉन पी एम मीडियन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल होती है, तो हैंस ये हो गया हमारा प्रूव। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। फॉर एनी डाउट एनीवेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और गूगल मीट। सो दैट्स ऑल।